meaning of cash book, features of cash book, and types of cash book, right? So today we will continue the same class, and be ready with your notebook, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So now I think a screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So be ready with your notebook. And today I'll be teaching you the format of cash book of single column. If you understand the format of single column cash book, so you can understand of two column also. Only the column will be added in the two column. One more column is to be added, and same format would be over there. Okay, students. So just try to prepare the format. Okay. So you know, okay, our chapter name is cash book. And today we have to about study the format of this cash book. Okay, so students, just note down format of simple cash book or single column cash book, right? Now you will see कि a single column cash book have, so it is saying that a simple cash book is like an account. I think you all have studied in the second chapter. You all have studied in second chapter ki what is the meaning of account and what is the format of account. Okay, so that's why I have written here. Simple cash book is like an account with an amount column of each side. What is saying? So beta focus यहाँ पे करना. कह रहा है simple column, simple cash book is like an account. एक ledger जैसा होता है. Account means ledger, कि जो कि जर्नल एंट्री के बाद बनाया जाता है. ठीक है. सो बट ये दोनों चीज है, मैंने कल फीचर में पढ़ाया था लास्ट क्लास में. तो सिंपल कैश बुक इज लाइक एन अकाउंट विद एन अमाउंट, यानी अमाउंट का कितना कॉलम होता है? वन अमाउंट होता है कॉलम का सिर्फ. ऑन ईच साइड मीन्स यू ऑल आर नोइंग दैट in accountancy there are two side, one is debit and other one is credit. So one amount column will be in debit side and other amount column will be in credit side. Okay, so here further I'm explaining the left hand side. The left hand side is called debit and it records receipt of cash. तो देखो बेटा ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड साइड, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो डेबिट होता है एंड इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट ऑफ कैश, व्हाइल राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड विल बी क्रेडिट साइड एंड इट रिकॉर्ड्स पेमेंट्स ऑफ कैश. ठीक है, तो डेबिट साइड में रिसिप्ट ऑफ कैश होता है और पेमेंट साइड में जो क्रेडिट साइड में पेमेंट ऑफ कैश होता है. ठीक है, ऐसा क्यों? देखो इसका रूल भी है बेटा, आप लोग को पढ़ा होगा आप लोगों ने, डबल एंट्री का जो डेबिट क्रेडिट रूल होता है. कैश, कैश इज द रियल अकाउंट. कैश का जो नेचर होता है अकाउंट का, इट्स द रियल अकाउंट एज यू नो. सो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग होता क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यानी जो आएगा हमारे पास बिजनेस में उसे डेबिट और जो जाएगा क्रेडिट. रियल अकाउंट के अंतर्गत यानी अंडर रियल अकाउंट जो भी चीजें हमारे पास आ रही है उससे डेबिट और जो जा रही है क्रेडिट करेंगे. राइट, सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक. देखो एक ही कॉलम होता है अमाउंट का डेबिट में और एक अमाउंट होता है क्रेडिट में, इसलिए इसको हम लोग सिंगल कॉलम कहते हैं. हम अमाउंट से कंसिडर करते हैं कि कितने कॉलम है, जितने नंबर ऑफ कॉलम अमाउंट के बनेंगे उतने कॉलम कहलाते हैं कैश बुक. ठीक है, सो अब फॉर्मेट हम लोग चेक करते हैं. फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. सो बी रेडी विद योर नोटबुक, यू कैन ड्रॉ द फॉर्मेट. सो स्टूडेंट्स यू विल सी फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. डेट, पहला कॉलम क्या है? डेट.
particulars, voucher number, LF means ledger folio, VN means voucher number, LF means ledger folio, and rupees. देखो rupees is the column for the amount. So देखो बेटा जितनी भी कॉलम अभी लेफ्ट में लिखा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, रुपीस यानी अमाउंट, दिस सेम कॉलम वुड बी रिपीटेड इन द क्रेडिट साइड, मींस राइट हैंड साइड, डेट, particulars, voucher number, ledger folio and amount column. Okay, so students, you know left hand side is called debit. You see here debit is written over here, and right hand side you will see it is known as credit. Okay, and debit side, as you know, we write all the receipt. Okay, all the receipt we should write in debit side, and in credit side we will write payments. But be careful, receipts and payment means cash transactions, non-cash neither will be receipt nor will be payment. Okay, so only cash transactions should be recorded in the single column cash book, and in cash book always we record the cash transactions, whether the payment is made in cash or bank, it doesn't matter. We will discuss later on about the two column, but we are discussing here the single column cash book in which we record the receipt and payment of cash only. Non-cash transaction, there is no place for the non-cash transactions. Okay, so student, you will see in debit side when we do receive money, so we will write the receipt side means debit side by the 2. We start debit side from 2. ठीक है, पहले 2 लिखेंगे, then the name of account. ओके, कि किस अकाउंट्स के थ्रू क्या सोर्स है, मतलब किस सोर्स से हमारे पास पैसा आ रहा है. जैसे कि हमने गुड्स बेचा, सपोज दैट वी हैव सोल्ड गुड्स, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि पैसा क्यों आ रहा है, सेल्स करने की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से पैसा आएगा रिसिप्ट में, उस वजह के नाम का अकाउंट लिखेंगे यहाँ. ठीक है, ठीक उसी तरह पेमेंट. सो पेमेंट में क्या होता है, जब हम पेमेंट करेंगे तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम बाई, विथ बाई, हम लोग बाई से स्टार्ट करेंगे, और डेबिट में रिसिप्ट में 2 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो बाई लिखेंगे, और पेमेंट किस चीज के लिए कर रहे हैं, सपोज दैट यू हैव परचेज्ड गुड्स, सो आपने जो पेमेंट किया क्यों किया, परचेस की वजह से किया, तो यू विल राइट बाय परचेस अकाउंट. ओके, सो दिस विल बी फॉर द रिसिप्ट एंड दिस विल बी फॉर द पेमेंट. लाइकवाइज जितने भी रिसिप्ट होंगे ड्यूरिंग द मंथ आप इधर लिखेंगे, और जितने पेमेंट होंगे इधर लिखेंगे. एट लास्ट आपको पता होना चाहिए कि कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो हमेशा ज्यादा होगा क्रेडिट से. व्हाई, बिकॉज वी कैन नॉट मेक पेमेंट मोर देन रिसिप्ट. जितना हमको रिसिप्ट हो रहा है उससे ज्यादा हम पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए रिसिप्ट हमेशा ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा. ठीक है, जब तक रिसीव नहीं होगा, पैसा होगा ही नहीं मेरे पास, तो हम पेमेंट कहां से करेंगे. तो इसलिए याद रखो, कैश बुक का ऑलवेज कैश कॉलम जो होता है डेबिट बैलेंस होता है. राइट, सो अब हम लोग यहां ध्यान रखेंगे कि डेबिट कॉलम हमेशा ज्यादा होगा. स्टूडेंट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो अब ज्यादा जो होता है वो दोनों साइड लिखो. तो पहले डेबिट साइड का टोटल यहाँ जो आएगा वही टोटल यहाँ लिखेंगे. ठीक है, अब इस टोटल में से क्रेडिट साइड का जितना पेमेंट किए होंगे सब कुछ ऐड करके इस टोटल में से घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी. दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस मींस एट द एंड ऑफ द मंथ हमको इस बैलेंसिंग फिगर से पता चलता है कि मंथ के लास्ट में इतने रुपए का कैश हमारे हाथ में अभी बचा हुआ है. और चूंकि क्लोजिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मंथ के लास्ट में होता है. ठीक है, तो मंथ के लास्ट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, फिर यही पैसे को अगले महीने ट्रांसफर कर देंगे. तो नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में जब ट्रांसफर करेंगे तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी. दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस. पिछले साल मंथ में ये क्लोजिंग था, तो करेंट ईयर के बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. राइट, तो बेटा याद रखो ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीडी लिखते हैं. ठीक है, तो और कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, मतलब डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा. सो फॉर्मेट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स. हैव यू डन बेटा, स्क्रीनशॉट डन? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. Yes, sir.
Yes, So sir. now I'm coming to the explanation of the columns. You will get. So detail of column. स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने कॉलम्स देखे हैं कि डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट कॉलम, एंड देन द सेम कॉलम has been repeated in the credit side. So what is the meaning? What stands for this column? What we should record in these the columns? Okay, so let us discuss about this. So students, first column you will find there would be written date, right? So date means here date of transactions is written along with month and year. तो डेट कॉलम में सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, फिर उसके नीचे मंथ लिखेंगे, फिर उसके नीचे डेट लिखेंगे, ठीक है? सबसे और डेट और मंथ एक ही बार, सॉरी ईयर एंड मंथ एक बार लिखते हैं, फिर उसके नीचे सिर्फ डेट लिखते जाते हैं, क्योंकि ईयर चेंज नहीं होता बार बार, मंथ भी बार बार चेंज नहीं होता, सिर्फ डेट चेंज होता है, इसलिए सबसे पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन इज पर्टिकुलर्स. तो बेटा पर्टिकुलर्स क्या है, ध्यान से समझो. नेम ऑफ अकाउंट फ्रॉम हुम कैश इज रिसीव्ड. तो पर्टिकुलर में जो डेबिट साइड में उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसकी वजह से कैश रिसीव हो रहा है, इज रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ध्यान से समझो, नेम ऑफ अकाउंट फ्रॉम whom cash is received is written on left hand side. यानी कि जिस अकाउंट से हमको पैसा मिल रहा है उस अकाउंट का नाम कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड मींस डेबिट साइड. बट स्टार्ट कैसे होगा, कमेंसिंग विद 2, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 2 से स्टार्ट करेंगे और फिर गैप जो है यहाँ पे नेम ऑफ सोर्स लिखेंगे, मतलब जिसकी वजह से, जिस अकाउंट की वजह से हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है. एंड नेम ऑफ अकाउंट सेकेंड, एंड नेम ऑफ अकाउंट टू होम पेमेंट इज गिवन, और जिसके लिए मैंने पेमेंट किया है उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, यानी क्रेडिट साइड, कमेंसिंग विद बाय. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि you have understood date and particular column. Okay, so now next. Yes, sir. Next column beta, voucher number. As you all people are knowing that in second chapter or fifth or sixth chapter you had studied voucher number or source document. देखो बेटा होता क्या वाउचर, जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, दोनों भी किसी भी प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर पैसे का लेन देन होता है, पैसे से ट्रांजेक्शन होता है, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जहां पे पैसा इन्वॉल्व ना हो, ठीक है. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वाउचर छपवाया जाता है, प्रिंट करवाया जाता है. उस वाउचर में डिटेलिंग होती है कि पर्पस, किस पर्पस के लिए वाउचर कटा गया है, वो डेबिट वाउचर है कि क्रेडिट वाउचर है, और नरेशन, ये सब लिखा जाता है उसमें. वाउचर का मतलब एक ट्रांजैक्शन लिखा जाता है कि किस पर्पस के लिए ये वाउचर इशू किया जा रहा है, ठीक है. तो कह रहा है, अब पहले पूरा चीज समझा देते हैं वाउचर, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं. देखो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं अपने स्कूल का, इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में जब स्कूल फुल स्पीड में चल रहा था तो बसेस भी प्लाई कर रही थी, बस भी जा रहा था बच्चों के लिए, उनको घर से लाने फिर घर छोड़ने छुट्टी के बाद. तो आपको पता है कि बस ऐसे ही नहीं चलता, जैसे हम लोग को खाना यानी फूड लेना होता है टू गेट एनर्जी, उसी तरह बस के लिए फ्यूल होता है, पेट्रोल या डीजल, ठीक है. तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता है बेटा, इसके लिए पैसा चाहिए. तो जो ड्राइवर होता है वो अपने फ्यूल स्टेटस को देख करके अकाउंटेंट से कहता है कि बस में फ्यूल की रिक्वायरमेंट है. तो अकाउंटेंट क्या करता है, एक वाउचर बनाता है, उस बस नंबर के नाम से कितने रुपए का फ्यूल उसमें भरवाना है वो लिख करके वाउचर बना करके वो ड्राइवर को देगा. अब वो ड्राइवर क्या करता है,
वो वाउचर लेकर अकाउंटेंट के सॉरी कैशियर के पास जाता है। कभी कभी बिजनेस में कैशियर और अकाउंटेंट एक ही पर्सन होते हैं। ओके, एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने बताया कि आई वाज टेलिंग यू कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट एंड कैशियर सब एक ही पर्सन है। ठीक है, तो पहले अकाउंटेंट वाउचर बनाता है, फिर जो ड्राइवर है या जो भी पर्सन है वो उस वाउचर को लेकर के कैशियर के पास जाता है। ठीक है, अब कैशियर उस वाउचर को अपने पास रख लेता है और जितने रुपए का फ्यूल भराने के लिए उस वाउचर पे लिखा हुआ है वो पैसा ड्राइवर को देता है। फिर ड्राइवर जाता है पेट्रोल पंप पे, फ्यूल भरवाता है, वहां से लेता है। उसके बाद जब जहां से फ्यूल लेगा पेट्रोल पंप से, उससे वो रिसिप्ट लेगा, कैश मेमो लेगा कि कितने रुपए का फ्यूल भरवाया गया, वो देता है। आप लोग जाते हो अगर बाइक से पेट्रोल भराते हो उसी तरह चले जाते हो, बट अगर आप उससे रिसिप्ट मांगते हो तो वो काट कर देगा बिल बना के। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का पर्सनल होता है इसलिए हम लोग नहीं मांगते, लेकिन जब किसी इंस्टीट्यूशन का होता है तो वहाँ खर्च और इनकम का ब्यौरा रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो ड्राइवर वहां से रिसिप्ट लेगा उस कैश मेमो को, जिसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, अब वो कैश मेमो लाकर वो उस कैशियर को देगा, वो कैशियर उसी वाउचर के साथ स्टेपल करके अपने पास रिकॉर्ड में रख लेगा। सॉरी, तो समझ में आया? अब जब उसका कैश बुक में रिकॉर्ड होगा तो वाउचर नंबर लिखा जाता है। ठीक है, जो प्रिंटेड वाउचर होता है हर एक पर सीरियल नंबर पड़ा होता है, तो वो किस वाउचर नंबर के थ्रू वो ट्रांजैक्शन हुआ है उस वाउचर का नंबर उसी VN कॉलम में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इट रिकॉर्ड्स द वाउचर नंबर टू सपोर्ट द ट्रांजैक्शंस। ऑन डेबिट साइड we record receipt voucher numbers, and on credit side we record payment voucher number. I hope ki you have understood students about the voucher. Now Yes, sir. LF means ledger folio. Okay students, so ledger folio क्या होता है अब ये समझते हैं हम लोग। सो देखो, जब अकाउंटिंग प्रोसेस वाला अगर आप वीडियो भी देखे होगे या बुक में पढ़े होगे तो आपको पता होगा जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, सबसे पहला हम लोग जो स्टेप होता है फुल अकाउंटिंग साइकिल में, जर्नल एंट्री बनाते हैं या सब्सिडियरी बुक बनाते हैं, दोनों में से कोई एक चीज। उसके बाद जर्नल या सब्सिडियरी बुक की हेल्प से हम लोग लेजर बनाते हैं, जिसे क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, लेजर क्या होता है और जर्नल क्या होता है, फर्क क्या है, ध्यान से समझो। अभी तक आप पिछले क्लासेस में जर्नल एंट्री पढ़े हो तो आपने देखा होगा एक पेज पे पूरा लाइन ड्रॉ कर लिया और अलग अलग डेट को जो भी परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव्ड, एक्सपेंसेज, इनकम जो भी किया डेट वाइज आप लिखते जा रहे हो पूरा ट्रांजेक्शन। तो इससे क्या हुआ, उस जर्नल एंट्री को देख करके आप बता सकते हो कि हम इस महीने में कुल कितने रुपए का गुड्स खरीदे या कितने रुपए का बेचे या कितना सैलरी पेमेंट किए, कितना, एक बार में हम नहीं बता सकते। ठीक है, हमको बड़ा छांटना पड़ेगा, उसमें से सर्च करना पड़ेगा। लेकिन लेजर क्या होता है, लेजर हर एक अकाउंट का सेपरेट रिकॉर्ड होता है। जैसे परचेस, तो परचेस का अगर हम लेजर बनाते हैं तो उसमें जितने रुपए का हमने परचेस खरीदा, चाहे नगद या उधार, सारा परचेस का सिर्फ रिकॉर्ड होगा। अगर सेल्स का लेजर बनाएंगे तो सेल्स का रिकॉर्ड होगा। ये कहां से जाता है, जर्नल एंट्री के हेल्प से लेजर बनाया जाता है, हम पढ़ाएंगे आगे के क्लास में। ठीक है, सो जर्नल एंट्री के हेल्प से लेजर बनाया जाता है। आप लोग को याद होगा जब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप बनाते हो तो उसमें डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद LF का कॉलम आता है ना। तो LF का कॉलम का मतलब कि उस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग किस लेजर के पेज नंबर पे किया गया है। ठीक उसी तरह चूंकि कैश बुक क्या है, हमारा ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैश बुक बना लिया तो जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए ये भी ओरिजिनल बुक है। तो कैश बुक की पोस्टिंग भी लेजर पे होती है। ठीक है, तो अगर से किस लेजर पे हमने इसको पोस्ट किया है, कभी कभी आप इसमें मिलेगा CBF कैश बुक फोलियो, आगे PT कैश बुक में हम लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग नाम आएगा। ओके, सो लेजर फोलियो में सिर्फ LF लिखा जाता है। LF का मतलब उस ट्रांजैक्शन को किस पेज पर, लेजर के किस पेज पर
पोस्ट किया गया है, वो पेज नंबर वहां होगा, जिससे हमें भविष्य में अगर देखना हो कि इस पर्टिकुलर रिसिप्ट की पोस्टिंग किस पेज नंबर पे की गई है, तो वहां से पेज नंबर देख के तुरंत हम लेजर बुक के उस पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लेजर फोलियो। बट आपको प्रैक्टिकली अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एलएफ का कॉलम बना के छोड़ देना है और वाउचर नंबर का कॉलम बना के छोड़ देना है। आपको अभी उसमें कुछ लिखना नहीं है, वो आप रियल लाइफ में करोगे। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ सीख रहे हो। सो लेजर फोलियो मींस हियर वी रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर, ठीक है, वेयर दिस ट्रांजैक्शंस इज पोस्टेड इन द लेजर। तो आई होप कि लेजर तक आ गया बेटा। तो इसके बाद तो अमाउंट का कॉलम है, वो समझ में आ ही गया होगा कि अमाउंट कॉलम होता है नेक्स्ट। ठीक है, सो आप देखो कि अमाउंट वाले कॉलम में क्या लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप कि अमाउंट का कॉलम आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, यस सर। ओके, सो अब हम लोग Yes, बेटा, हाँ अब देखो कि आगे कुछ चीजें और बताएंगे, अच्छे से समझ लो, ताकि कैश बुक पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, नहीं तो बाद में स्टूडेंट कहते सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और वो परेशान रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, सो देखो बेटा बैलेंसिंग, अब लास्ट में जो बैलेंस सीडी और बीडी हमने लिखा है उसके बारे में समझ लो। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक, तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं, अब आप खुद से सोचो। कैश बुक में दो कॉलम तो दिख गया, एक डेबिट साइड रिसिप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट। तो जितना भी रिसिप्ट होगा आप डेबिट में लिखते जाओगे और जितना पेमेंट होगा क्रेडिट में लिखते जाओगे, लेकिन रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि हमारे पास पैसा हाथ में कितना है? क्या हम बार बार गिने, हर ट्रांजेक्शन के बाद गिनना पड़ेगा? नहीं। तो हम करते क्या है, देखो जो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो एक दुकानदार दुकान बंद करते समय पूरा पैसा का हिसाब किताब मिलाता है कि कितना पैसा आया, कितना पेमेंट किया, कितना बचा हुआ, उसके हिसाब से टोटल करके क्रॉस चेक कर लेता है। लेकिन हम लोग चूंकि अभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम लोग को सीखना है, तो कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ की मंथली वाइज हम लोग टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो अक्सर आपको देखो दो तरीके से बैलेंसिंग होता है, या तो डेली बेसिस पे, डेली, या मंथली होता है, मतलब पीरियोडिक बेसिस पे। पीरियोडिक बेसिस का मतलब मंथली वाइज, हर एक महीने के लास्ट में, रोज रोज हम लोग अलग से रफली भले कर ले, बट एक फॉर्मल वे में बुक जब मेंटेन करते हैं तो वहाँ मंथली करते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक से भी स्टेटमेंट निकालते हैं हर महीने के लास्ट में, और पता करते हैं कि बैंक में कितना बैलेंस बचा है, हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, इन सारी चीजों का। ठीक है, तो स्टूडेंट, सो बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो कह रहा है इट इज बैलेंस्ड लाइक अनदर अकाउंट। जैसे हर एक लेजर को हम लोग बैलेंस करते हैं, टी शेप अकाउंट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोग नए जो लोग होंगे नहीं पढ़े होंगे, टी शेप अकाउंट इट जस्ट लाइक अ लेजर, उसमें कैसे बैलेंस किया जाता है वो मैंने पढ़ाया था। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज बैलेंस्ड लाइक एनी अदर लेजर अकाउंट। ठीक है, द टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड डेबिट इज ऑलवेज मोर, अभी मैंने बताया भी था कि रिसिप्ट साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, वो हमेशा ज्यादा होगा, एंड टोटल ऑफ द पेमेंट साइड क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट से ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लो कि ज्योत्सना, ज्योत्सना आर यू देयर ना, ज्योत्सना आर यू देयर बेटा, स्पीक अप, ज्योत्सना सिंह, आई थिंक इज नॉट Yes, sir. लिसनिंग। ओके बेटा ज्योत्सना, हाँ आप बताइए Yes, कि sir. मैंने अगर आपको सपोज दैट मैंने आपको 2000 रुपए का नोट दिया या 2000 रुपए दिया, तो आप कैश बुक में कहाँ लिखोगी? किस साइड लिखोगी? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? Yes, sir. ज्योत्सना, हाँ बेटा बताओ कि सर अगर हम मैंने बताएं, आपको, सर हम हाँ बताएं। बताओ बेटा, बताओ सर बताओ। डेबिट साइड पे। डेबिट साइड में, वेरी गुड। तो अपना शुभ नाम बताओ, सब लोग को पता चले। सर सार्थक गुजराती। सार्थक गुजराती, वेरी गुड। वाह। तो सार्थक बताया कि उसको अगर मैंने 2000 रुपया दिया, देखो ये गुजराती सर। फैमिली से है, यानी हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हैं, हम सब लोग बनिया वाला पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। पैसे पे हाँ। फोकस किया करो आप सभी लोग, तभी तो पढ़ाई करोगे कॉमर्स के।
पैसे में यहाँ फोकस किए, रुपए पर, पैसा जहां दिखा खींचे जाओ उधर, ठीक है। तो पैसा देखते ही देखो सार्थक के दिमाग में आ गया पैसा आ रहा है, पैसा डेबिट ना। अब सार्थक ये बताओ कि 2000 रुपया दिया और मैंने बोला कि तुम्हारी जितना इच्छा उतना जाओ खर्च करो उसमें से, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो? सर 1000 का। 1000 ज्योत्सना को दोगे तो 2000 पूरा खर्च कर देगी, कहेंगे सर और पैसा दीजिए। हाँ लो जी ज्योत्सना। नो सर। नहीं यस सर। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत ही मतलब कॉमर्स वाला पहले से दिमाग आ गया, पैसा बचा के चल रहा है, नहीं लॉकडाउन में कैसे खर्च होगा। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। सो सार्थक ने बताया कि हम 1000 रुपए खर्च करेंगे, क्यों सार्थक, ऐसा ही ना? हाँ सर हाँ। जी, लेकिन मैंने तुमसे क्वेश्चन किया कि 1000 से मतलब मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो, तो मैक्सिमम बेटा 2000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जितना मैंने दिया उससे ज्यादा एक पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि हमारा पॉकेट खाली हो गया होगा। तो आप खुद से सोचो कि कैश अकाउंट का या कैश बुक का कभी भी बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस में अगर है कुछ तो वो डेबिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता, यानी पेमेंट साइड ज्यादा कभी नहीं हो सकता। पेमेंट जब भी होगा या तो डेबिट के बराबर होगा, रिसिप्ट के बराबर होगा, या तो उससे कम होगा, इसीलिए हम लोग का ये डेबिट बैलेंस होता है। तो बैलेंसिंग करना हर महीने के लास्ट में जरूरी होता है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे जेब में कितना पैसा भरा हुआ है, पड़ा हुआ है, जिससे हम आगे और भी ट्रांजेक्शन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान दो, यही लिखा हुआ है, ठीक है। द टोटल ऑफ बोथ साइड इज रिटेन, तो हम लोग जब टोटल करते हैं जो ज्यादा होता है दोनों साइड लिख देते हैं वही, फिर देयर आफ्टर on receipt side we write the to balance BD, ये तो बात की चीज है, पहले बैलेंस CD हम लोग कर लेते हैं। देख लो यहाँ डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, तो जो डिफरेंस होगा उसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD किस साइड होगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि बाई क्रेडिट में लिखते हैं, है ना। फिर दोनों साइड टोटल लिख देंगे, बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद जो बैलेंस CD होगा, अब वही क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो कह रहा है देयर आफ्टर ऑन रिसिप्ट साइड, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? रिसिप्ट साइड में, क्योंकि उतना पैसा मेरे पास अभी भी हाथ में पड़ा हुआ है। सो वी राइट टू बैलेंस BD, ओके। टू बैलेंस BD कब लिखेंगे? अगले महीने की पहली तारीख को, यानी जिस दिन क्लोज करते हैं उसी के नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। टू बैलेंस BD लिखेंगे टू रिप्रेजेंट बैलेंस of cash in the beginning of next period, okay. So student, I hope ki this all the column you have understood in a proper way, okay, very good. So now some informations also I am sharing while you do practical question, means while you actually solve the question। तो सिंपल कैश बुक के बारे में सिर्फ मैं बात कर रहा हूं अभी, डबल कॉलम के बारे में नहीं, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, पहले एक आ जाना चाहिए। सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, स्टूडेंट्स यू शुड नोट इट। सो सबसे पहला कि कैश अकाउंट इन लेजर विल नॉट बी ओपेन्ड व्हेन कैश बुक इज मेंटेन्ड। अगर हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो हमको दोबारा से कैश का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन, मान लो कि अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस होगा, क्यों कि पिछले मंथ का क्लोजिंग होगा तो ऑब्वियसली इस मंथ का ओपनिंग होगा। अगर हम पहली बार कैश बुक बना रहे हैं तब ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, तब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर कैश बुक हम हर महीने बना रहे हैं पीरियोडिक बेसिस पे और आपको किसी मिड ऑफ द मंथ का मिला हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होना जरूरी है, वो दिया होगा क्वेश्चन में। सो उसको कहां लिखेंगे? टू बैलेंस BD, ठीक है। इट इज रिटेन ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस BD, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो। तीसरा स्टेप, फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड। देखो बेटा बाकी सब तो तुम्हें पता है, क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे ये ध्यान रखो। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, अगर हमने किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है या किसी को गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल किया है
तो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ना तो पैसा आ रहा है ना तो पैसा जा रहा है। अगर किसी सैलरी किसी को पेमेंट करना है, अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, बाद में करेंगे, तो रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी का रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज दीज आर नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। मान लो कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है और आप उसे कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो बिजनेस में, ठीक है, तो आपको पता होगा, एक जब सेकेंड चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें एक वर्ड आया होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूअस यूज। जब किसी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स को हम लगातार बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो यूज करने से उस एसेट्स की कीमत में कमी आती है। तो जितना कमी आएगा, ठीक है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बेटा डेप्रिसिएशन जितना होगा उसके लिए हम किसी को पेमेंट तो नहीं करने जाते, हम सिर्फ अपने बुक में उस एसेट्स की वैल्यू माइनस करके दिखा देते हैं। तो ये क्या हो गया? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो हम लोग डेप्रिसिएशन को भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, तो ये भी नॉन कैश है बेटा। डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं तो किसी को पैसा नहीं देते। जितना पैसा, मान लो किसी से हमको 10,000 रुपये लेना है और हमने उसको 500 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो हम उसे 500 रुपये जेब से तो नहीं देंगे, बल्कि उससे 500 रुपये घटा के हम लेंगे, यानी 9,500 रुपया हम उससे लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा पैसा, तो वो कैश वाले कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, लेकिन डिस्काउंट अलाउड का रिकॉर्ड अलग से नहीं होगा। ठीक उसी तरह डिस्काउंट रिसिप्ट, अगर से हमको पेमेंट करना है किसी को, मान लो कि 10,000 पेमेंट करना है और अगला हमको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो पैसा थोड़ी देगा हमको 1,000, हमसे कहेगा कि आप डिस्काउंट माइनस करके दे दो, तो हम उसको डिस्काउंट घटा के 9,000 रुपीज पे करेंगे, तो पैसा तो जाएगा ही और हमको डिस्काउंट मिलेगा। सो डिस्काउंट रिसिप्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ रिसिप्ट ऑफ चेक्स एंड पेमेंट ऑफ चेक्स। तो बेटा रिसिप्ट और पेमेंट का चेक का रिकॉर्ड होता जरूर है, लेकिन डबल कॉलम में, जबकि हम बैंक का भी रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिंपल कैश बुक पढ़ रहे हैं, जहां पर सिर्फ एंड सिर्फ कैश का रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो बैंक का रिकॉर्ड यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ चेक और पेमेंट ऑफ चेक्स का रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास क्या बैंक का रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। अब लास्ट है, इट ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर, क्योंकि डेबिट ज्यादा होता है क्रेडिट से। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। नाउ you should note the question. Enter the following transactions in the simple cash book of Ashok. Okay students, so just I am going to share the question. So you will see in front of you, you just take the screenshot, I'll be reading. So year है 2020, transactions rupees, जनवरी मंथ का सारा ट्रांजेक्शन है, ठीक है। 1 जनवरी को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है कैश का, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 से, राइट। फिर आपने गुड्स खरीदा 18,000 का, फिर 7 तारीख को आपने गुड्स बेचा 9,000 रुपए का, फिर 9 तारीख को गोपाल को पेमेंट किया 4,000 रुपए का, फिर 13 तारीख को कैश रिसीव हुआ अमित से, पैसा मिला मतलब आपको 13 तारीख को 8,000 रुपए। फिर फर्नीचर खरीदा आपने 3,000 रुपए का, फिर इंटरेस्ट पेड किया 17 तारीख को 500 रुपए का, फिर कमीशन मिला आपको 19 तारीख को 400 रुपए का, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, घर पैसा ले गए बिजनेस में से निकाल कर 2,000 रुपए का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया बिजली का जो भी है 800 रुपए का, सैलरी पेमेंट किया 1,200 रुपए का, कैश गुड्स बेचा, कैश सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो 8,000 रुपए का, एंड 31st को बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ उधार खरीदा है बेटा, तो उधार में ना तो पैसा आ रहा है ना तो जा रहा है, इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग फॉर द सॉल्यूशन। तो आई होप यू ऑल हैव टेकन द एसेस ऑफ दिस स्लाइड। स्टूडेंट डन? Yes, sir. Okay. Yes sir. Okay students, so now you will see
द कैश बुक। सो ड्रॉ द फॉर्मेट। बेटा सभी लोग पेन पेपर लेकर बैठो, फटाफट लाइन ड्रॉ करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे मेरे साथ, ठीक है? आप सभी लोग बना लो, तभी आप सीखोगे अच्छे से। Yes, तो sir. फॉर्मेट आपको पता है, देखो ये फॉर्मेट है। पहला कॉलम डेट का बनाओ, पर्टिकुलर VNLF अमाउंट यानी रुपीस, फिर डेट पर्टिकुलर VFLF अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट। सो देखो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑन January 1st। जनवरी की पहली तारीख को, तो पहले लिखेंगे 2020 जनवरी, इधर भी लिखेंगे 2020 जनवरी। तो मंथ का नाम एक ही बार लिख लो, बाकी डेट लिख सकते हो चेंज करके, क्योंकि टाइम लगेगा बार बार मंथ लिखोगे तो, ठीक है, क्योंकि सेम मंथ है। सो देखो सबसे पहली तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपए से, तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा? पैसा आ रहा है? सभी लोग को क्लियर है? पैसा आ रहा है आपके पास 20,000? आप लोग क्या हो? अकाउंटेंट हो आप लोग, ओनर नहीं समझोगे अपने आप को। आप लोग क्या हो? बनिए के मुनीब, बनिए के मुनीब, ठीक है, अकाउंटेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। सो आप लोग अकाउंटेंट हो। ओनर ने 20,000 रुपए से स्टार्ट किया बिजनेस, तो ओनर ये 20,000 रुपया आपको दिया, तो आपके पास 20,000 रुपया आया, तो पैसा डेबिट में लिखेंगे। और कहां से आया? ओनर के पास से, तो ओनर का नाम लिख सकते थे टू अशोक, लेकिन आपको पता है बेटा ओनर है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। या तो आप लिखेंगे टू अशोक कैपिटल या केवल कैपिटल। केवल कैपिटल हम तब लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट जब सिर्फ एक ही व्यक्ति ओनर होता है। तो इस क्वेश्चन में सिंगल ओनर है, तो सिर्फ लिख सकते हो टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। अब 1 तारीख के बाद आप देखोगे क्वेश्चन में 4 तारीख को अगला ट्रांजेक्शन है। आपने 18,000 रुपए का गुड्स खरीदा, तो आप गुड्स खरीद रहे हो, तो आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसे पे फोकस करना है बेटा से, जा रहा है पैसा? यस सर। तो बाई परचेस क्यों जा रहा है? गुड्स खरीदने की वजह से, तो बाई परचेस अकाउंट, और 18,000 रुपया पेमेंट में लिख दिया। वेरी गुड। तो बस पैसा, जहां पैसा है वहां पे नजर दौड़ाओ, जहां पैसा नहीं है आंख मोड़ लो वहां से, ठीक है, तभी आप सक्सेस होगे बिजनेस में। अब 4 तारीख के बाद 7 तारीख को आ जाओ, 7 जनवरी। 7 जनवरी को आपने गुड्स सेल किया है 9,000 रुपए का, तो पैसा आ रहा है? तो पैसा आ रहा है तो 9,000 रुपया लिखेंगे, ठीक है। और कहां से आ रहा है? सेल्स करने की वजह से आ रहा है, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, राइट। अब 7 तारीख के बाद अगला ट्रांजेक्शन 9 तारीख को है। आप देखो क्वेश्चन में, गोपाल से पैसा मिला। बेटा गोपाल से पैसा मिला है, सॉरी गोपाल को पेमेंट किया, पेड टू गोपाल ₹4,000 लिखा है ना क्वेश्चन में। तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है 4,000 पेमेंट में। किसको दिया आपने? गोपाल को। क्योंकि गोपाल एक नेचुरल पर्सन है, इसलिए इनके नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो 4,000। अब उसके बाद 9 तारीख के बाद 13 तारीख को हमें अमित से पैसा मिला, तो पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट भी लिखेंगे 8,000 रुपए। और कौन दे रहा है? अमित, तो लिखेंगे टू अमित, ठीक। फिर अब 13 तारीख के बाद 15 तारीख को आपने फर्नीचर खरीदा बेटा। सो फर्नीचर खरीदे तो पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? फर्नीचर खरीदने की वजह से, तो लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अब 15 के बाद 17 को देखो आपने ब्याज का पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेड, बट हमने यहाँ अकाउंट नहीं लगाया है। आप अकाउंट लिख लोगे, बाय मिस्टेक आई हैड फॉरगेट, ओके। तो आप यहाँ आई हैड फॉरगॉट, तो यू विल राइट हियर इंटरेस्ट। सो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 17 तारीख को आपने 500 रुपया दिया, तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे और बाय इंटरेस्ट अकाउंट। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। अब 19 को 19 तारीख को कमीशन मिला। कमीशन में क्या मिला? लड्डू पेड़ा थोड़ी मिला, कमीशन में पैसा मिला। यस, तो पैसा लिखेंगे 400 रुपया और नाम लिखेंगे कमीशन की वजह से मिला, तो डू कमीशन अकाउंट। गुड। अब 19 के बाद आते हैं 23 तारीख को। 23 तारीख को ओनर जो मिस्टर अशोक थे 2,000 रुपया निकाल के घर ले गए। घर ले गए तो ओनर है, ओनर पैसा लगाता है तो कैपिटल लिखते हैं, और पैसा निकालता है तो ड्राइंग लिखते हैं, ठीक है। तो पेमेंट कर रहे हैं तो ओनर का नाम ना लिखना, ड्राइंग लिखेंगे, ये बताएगा कि ओनर घर ले गया, ठीक है। अब आते हैं 23 के बाद 25 तारीख को। 25 तारीख को आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, पैसा गया, ठीक है।
फिर 27 तारीख को सैलरी का पेमेंट किया, कर्मचारियों का, स्टाफ का सैलरी पेमेंट किया 1200 रुपया, ठीक है। फिर 29 तारीख को फिर से गुड्स बेचा आपने 8000 रुपए का, पैसा आ रहा है 8000 रुपए, और 29 को लिखेंगे टू सेल्स। अब 31 को आपने गुड्स उधार खरीदा है तो उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उधार का ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक है, यहाँ सिर्फ पैसे वाले को ध्यान में रखा जाता है, नगद वाले डिस्को और उधार वाले किसको, नाम सुना है कि नहीं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब बैलेंसिंग करेंगे, तो बेटा बैलेंसिंग हमेशा महीने की लास्ट डेट को किया जाता है। कब करेंगे, लास्ट डेट को। तो जनवरी महीने का लास्ट डेट क्या है, 31। तो बैलेंसिंग पहले आप लोग पेन पेपर लिए हो, रफ में टोटल करो डेबिट साइड का पहले, क्योंकि डेबिट ज्यादा होता है। 20 + 9 + 8 + 4 + 8, तो टोटल आ रहा होगा 45,400 रुपए, 45,400। सो डेबिट में लिखो 45,400, फिर क्रेडिट वाला टोटल करोगे 18, 4, 3, 2, 5, 8, 1200। कितना जोड़ोगे तो घटाने पर बचेगा 15,900, तो उसको लिखोगे बाई बैलेंस सीडी 15,900। अब यही टोटल दोनों साइड लिख दोगे, क्योंकि 15,900 लिख दिया तो अब यहाँ पर भी 45,400 हो गया होगा जो इधर था, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट। यस सर। अब देखो Yes, यहाँ sir. एक टाइप मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा, ये जो टू बाई बैलेंस सीडी लिखा है इसको डेबिट साइड में यहाँ पर 1 फरवरी, चूंकि जनवरी था लास्ट तो यहाँ लिखेंगे फरवरी 1 और लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 15,900 रुपए। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस कम था, तो मैंने सोचा कि शायद दिखेगा नहीं, तो इस बैलेंस सीडी को आप यहां तक छोड़ दिया, इट्स ओके, बट आप कोशिश करो कि नेक्स्ट मंथ के पहली तारीख को टू बैलेंस बीडी लिख के दिखा दोगे, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. शेयर करते हैं, और आप लोग बताना, एक एक लोग से पूछेंगे, आप लोग अच्छे से गलत सही, पैसा आ रहा है जा रहा है क्या हो रहा है, रिकॉर्ड करना है आपको। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मोहन, दिल्ली। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सभी लोग रीड करो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। यहाँ पर 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट यहाँ हो रहा है, बिजनेस नहीं स्टार्ट है, मतलब 1 अप्रैल को ओपनिंग डेट है, जनरली अप्रैल से मार्च तक चलता है बिजनेस। तो 1 अप्रैल को कैश इन हैंड बता रहा है बेटा। कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस, यानी पहले से पैसा था 25,000। फिर 4 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित, ठीक है। फ्रॉम नहीं, यहाँ टू होगा बेटा, यहाँ फ्रॉम की जगह टू कर लेना आप लोग, बाय मिस्टेक आई हैड रिटेन फ्रॉम, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो टू होगा, ठीक है। रोहित को 20,000 का उधार। 6 तारीख को गुड्स खरीदा आपने नगद और ऑन क्रेडिट 10,000 का, तो 10,000 का उधार और 30,000 का नगद खरीदा है। 8 तारीख को सैलरी पेड किया 3,000 और 2,000 रुपया ड्यू फॉर सैलरी टू रवि, अभी 2,000 रुपया देना बाकी है। 10 तारीख को चेक मिला रोहित से 20,000 रुपए, विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे, जिसको कि उसी दिन बैंक में भेज दिया गया। तो बेटा हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, यहाँ बैंक का कॉलम तो है नहीं, तो इसका रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। 12 तारीख को कैश विथ ड्यू फ्रॉम बैंक, तो पैसा तो आ रहा है, पैसे का रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, ऑफिस। तो जो हमारे बिजनेस में आ रहा है पैसा बैंक से, वो आ रहा है, लेकिन 10,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाला, तो कैश से तो नहीं जा रहा है, इसलिए इस पर्सनल यूज का कैश बुक में रिकॉर्ड सिंपल कैश बुक में नहीं करेंगे, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल कैश बुक, क्योंकि यहाँ बैंक से तो कुछ है नहीं। 18 तारीख को फर्नीचर खरीदा और पेमेंट कैश से किया, तो इसका रिकॉर्ड होगा। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं, डेप्रिसिएशन का नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो पैसा थोड़ी किसी को देंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटाकर दिखाते हैं, सिर्फ बुक चार्जेस है, ठीक है। सो अब आप सभी लोगों को पता हो गया होगा। देखो कैश इन हैंड को टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, 4 तारीख को गुड्स बेचा तो पैसा आया, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 50,000, ठीक है, और इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे 20,000 वाला, क्योंकि उधार है। 6 तारीख को गुड्स नगद खरीदा, तो बाई परचेज 30,000 रुपए का, और इसका रिकॉर्ड क्रेडिट वाले का नहीं होगा।
8 तारीख को सैलरी पेमेंट किया तो लिखेंगे बाई सैलरी 3000, बट इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे 2000 का। 10 तारीख को, हाँ बोलो बेटा, बोलो कुछ पूछ रहे हो? सर इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना चेक का? हाँ 10th का ना, यस 10th सर। वाला पूछ रहे हो? हाँ 10th का रिकॉर्ड नहीं होगा बेटा, वो चेक से मिला और बैंक में भेज दिया तो इसमें कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ना। हमें कहाँ फोकस करना है? पैसे पे। बेटा पैसे को छोड़ोगे भटक जाओगे। कॉमर्स में हो, पैसे पे ध्यान रखो। ठीक। 12 तारीख को कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, तो बताओ तुम्हारे पास पैसा आ रहा है कि नहीं फॉर ऑफिस यूज? बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, पैसा आ रहा है ना? यस सर। यस सर। पैसा रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट में। लेकिन 10,000 रुपया बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो बिजनेस में तो ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है पर्सनल यूज वाला, ये बैंक से जा रहा है, तो वो अलग होगा रिकॉर्ड, कैश बुक में नहीं होगा यहाँ। 18 तारीख को फर्नीचर खरीदा तो पैसा जा रहा है बाय फर्नीचर, और डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं। तो बेटा स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लो। आई एम शेयरिंग द सॉल्यूशन आल्सो। ले लिए सर। ओके, यस सर। yes. So now see the question. 2020 अप्रैल 1st टू बैलेंस बिडी 25,000 रुपए, ठीक है। फिर 4 तारीख को गुड्स बेचा है 50,000 का, तो टू सेल्स। 6 तारीख को गुड्स नगद खरीदा है 30,000 का, तो बाई परचेज। फिर 8 तारीख को सैलरी पेमेंट किया 3,000 का। फिर 12 तारीख को तुमने बैंक से पैसा निकाला 10,000 ऑफिस यूज के लिए, तो पैसा आ रहा है, और कहां से आ रहा है? बैंक से आ रहा है, तो बैंक अकाउंट, ठीक है। अब 18 को फर्नीचर खरीदा तो बाई फर्नीचर, पैसा जा रहा है। फिर 30 तारीख को, चूंकि अप्रैल महीने का लास्ट क्या होता है 30, तो 30 तारीख को बैलेंस करेंगे, तो पहले हम डेबिट वाला जोड़ेंगे, तो डेबिट वाला 90,000 आ रहा है। अब क्रेडिट वाला 30, 3 33 और 8 41,000 घटा देंगे 90 में से, तो 49,000 49,000, ठीक है। सो लिखेंगे बाई बैलेंस डी। अब 90,000 जो ये लिखा वो यहाँ भी लिख देंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। चाहे तो पहले ही से इस 90 को यहाँ लिख दो और इसमें से इन तीनों को सर 85,000 सर डेबिट में 85,000 आ रहा है सर। 85,000 33 8 41 41,000। हाँ बेटा 41,000 सर डेबिट साइड में सर 50 आएगा ना, में भी 85,000 आएगा सर। यहाँ 85 है। अच्छा Yes, sorry, sir. sorry बेटा, अभी सही कर देते। वेरी गुड, आप लोगों ने मतलब पढ़ाई किया है अभी को अच्छे से, वेरी गुड। अभी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है अभी? यस सर। हाँ तो Yes, बेटा देखो, sir. यहाँ पर मैं कम कर दे रहा हूँ। बहुत अच्छे आप सभी लोगों ने बताया, और यहाँ पर भी 85 लिखेंगे, और हमारे ख्याल से बैलेंस भी गलत होगा फिर। सो बैलेंस में आप 30, 3 33 और 8 41,000 रुपये घटाना है, ठीक है। तो देखो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ घड़ी आएगा, घटाइए आप लोग, कितना आएगा बताओ? 41,000 रुपये घटाओ, यानी 40 घटाते हो तो 44,000। 44,000। हाँ बहुत अच्छे। अब देखो बेटा, अब यहीं पे बैलेंस शीट किए है ना, तो अब देखो बैलेंस शीट को बीडी कैसे लिखते हैं वो भी दिखाई देते हैं तुमको। तो अप्रैल के बाद क्या होगा? 2020 ही रहेगा, और मई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हाँ फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। वेरी गुड बेटा। तो आप लोग बुक से प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक चीज मैं सजेशन करना चाहूंगा, आपके बुक में जीएसटी भी दे दिया होगा, अगर सभी लोग समझ लो, अगर जीएसटी भी दिया होगा तो सेल्स के साथ जीएसटी होगा या परचेज के साथ? आपको मालूम है जब सेल करोगे तो पैसा आएगा तो जीएसटी भी आएगा। मान लो एग्जाम्पल के रूप में बेटा मैं समझाने जा रहा हूं यहाँ, मान लो आपने 50,000 का गुड सेल किया और 6% सीजीएसटी है, 6% एसजीएसटी है, तो यहीं क्या लिखोगे? यहीं पे लिख दोगे टू, आउटपुट होता है सेल्स पे, ठीक है, आउटपुट सी जीएसटी, ठीक है। और कितना लिख देंगे हम? रुको पहले हम पूरा कर लें, सी जीएसटी और
टू आउटपुट। ठीक है, आप लोग को जीएसटी का पता ही है, सिर्फ आपको लिखना है, इसमें सेटअप वगैरह भी नहीं करना है। ये लिख लिया 50,000 का गुड्स बेचा है तो 6% कितना हो जाएगा 3,000 यस सर। और एस भी 3,000। बस ऐसा ही कर देना। अरे सॉरी, कहाँ चला गया भाई, एक मिनट। देखो बेटा, समझ में आ गया ना कि जीएसटी आ गया तो करना क्या है। मान लो परचेस किया है, परचेस में भी क्या होता है, इनपुट होता है। सो इनपुट CGST, ठीक है, अकाउंट और अकाउंट दोनों साइड लिखेंगे, हमने एक साइड अकाउंट नहीं लिखा है। ठीक है, इनपुट एज GST। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर 6% आ जाएगा 1,800 यहाँ। ठीक है, 1,800। बेटा समझ में आ गया कि अगर मान लो क्वेश्चन में जीएसटी भी दे दिया तो डोंट गेट कंफ्यूज। पैसा आ रहा है, नगद ट्रांजैक्शन है, तो डेबिट में रिसिप्ट में आउटपुट होगा और पेमेंट में इनपुट होगा। ठीक है, बस इसी तरह करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप कि यू कैन डू दिस। ओके बेटा, इज देयर एनी क्वेरी यू कैन Yes, आस्क sir. योर क्वेरीज। You can ask your queries if there is any doubt, any confusion. आप पूछ लो, कुछ पूछना है तो। किसी को कोई पूछना है?